السلام علیکم، سرچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ کینجھر جھیل سانحہ جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ کراچی کے علاقے چنیسر گوٹ فوجی گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد اجاز سے۔ جی شاہد۔ جی بالکل، کینجھر جھیل کے اندر ثانیہ میں 10 میتوں کی جو نماز جنازہ جو فوجی قبرستان میں ادا کر دی گئی ہے۔ میت فوجی قبرستان کے علاقے میں پہنچائی گئی تھی۔ اجتماعی نماز جنازہ میں جو ہے بہت شہریوں کی بہت زیادہ تعداد موجود تھی، جس کے اندر سیاسی جماعت کے رہنما موجود تھے۔ اس میں قومی اسمبلی کے عامر قیانی، وزیر اعظم کوارڈینیٹر احمد خان نوازی، رکن قومی اسمبلی پروگرام شیر کمال اور جو ہے بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ صحیح، شکریہ شاہد اجاز۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 24 سالہ جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی، معاشرے کے کمزور طبقے کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ جتنا بھی مشکل وقت آئے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اعظم نے کہا عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا جدوجہد کا اصل مقصد ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں کامیابی حاصل کی۔ ہماری جد و جہد کا محور ہر کمزور پاکستانی ہے۔ کمزور طبقے کے لیے سوچنا اصل ایمان ہے۔ مدینہ کی فلاحی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینا چاہتا ہوں۔ تعلیمی نصاب میں مدینہ کی فلاحی ریاست کا تصور شامل کریں گے۔ شفقت محمود سے کہا ہے نصاب میں ریاست مدینہ کا تصور شامل کریں۔ ابتدائی طور پر 8ویں اور 9ویں جماعت کے لیے نصاب تیار ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کابینہ اراکین نے حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی اور اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ مراد سعید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کو نئی ڈائریکشنز مل گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان عالم اسلام کے نئے لیڈر ہیں۔ فیصل واوڈا نے بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع ہونے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ شیخ رشید احمد نے ML1 منصوبے کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ ثانیہ نشتر نے کہا کہ غربت میں کمی کا سب سے بڑا پروگرام شروع ہوا۔ اسد عمر نے ملکی ترقی کے لیے حکومتی منصوبہ بندی سے آگاہ کیا اور کہا کہ وزیر اعظم کی کامیاب حکمت عملی سے کورونا پر قابو پایا۔ وزیر اعظم کریز پر سیٹل ہو چکے، لمبی اننگز کھیلیں گے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار کے 2 سال پورے کر لیے۔ چیلنجز کے باوجود وزیر اعظم نے طرز حکومت میں نئی روایات کو متعارف کروایا۔ عمران خان نے نہ صرف خود کفایت شاری کو اپنایا بلکہ وزراء سے بھی سخت جواب دہی کا نظام متعارف کروایا۔ وزیر اعظم کے بنائے تحقیقاتی کمیشنز کی رپورٹس میں ان کے اپنے قریبی ساتھی بھی زد میں آئے۔ ملک میں تبدیلی اور تبدیلی سرکار کے 2 سال مکمل۔ کپتان اور کھلاڑی چیلنجز کے باوجود پیش قدمی کے لیے پرجوش۔ انتخابی منشور احتساب کے نعرے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات۔ تحقیقاتی کمیشنز کی رپورٹس میں عمران خان کے قریبی ساتھی بھی زد میں آئے۔ وزراء سے بھی پہلی بار سخت جواب دہی کا نظام متعارف۔ کفایت شاری پر بھی عمل۔ تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال جہاں چیلنجز سے بھرپور رہے، وہیں وزیر اعظم عمران خان نے روایتی طرز حکومت کے برعکس اپنے منشور کے مطابق احتساب کے عمل کو آگے بڑھایا۔ ماضی کے وزرائے اعظم کے برعکس عمران خان نے تواتر کے ساتھ کابینہ اجلاس یقینی بنائے اور تمام اہم فیصلے کابینہ کی منظوری سے کرنے کے قانونی اور آئینی تقاضے پورے کیے۔ پہلی بار وفاقی وزراء کو مسلسل اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کا پابند بنایا گیا۔ کپتان نے مصلحت کا شکار ہونے کے بجائے آٹا اور چینی بحران کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کو یقینی بنایا، جس کے نتیجے میں PTI کی اہم ترین شخصیات بھی اس کی زد میں آئیں۔ IPPs کے مہنگے معاہدوں کی تحقیقات کے لیے بھی کمیشن بنایا گیا۔ PTI حکومت نے پسے ہوئے طبقات کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے احساس پروگرام کو فعال بنایا گیا اور نقد ماہانہ وظیفے کے ساتھ لنگر خانوں اور پناہ گاہیں بھی بنائی گئیں۔ شدید ترین معاشی، سفارتی اور داخلی چیلنجز کے باوجود حکومت نے اداروں کے ساتھ مثالی ہم آہنگی قائم رکھی اور اہم اہداف کے حصول میں سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر نظر آئیں۔ مہلک ترین کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اداروں کے ساتھ مل کر حکومت نے ایک مربوط پالیسی واضح کی اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے ایک بڑی جنگ جیتی، جس کا اعتراف عالمی دنیا نے بھی کیا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے اور ملک سے شدت پسندی کے خاتمے کے لیے مؤثر قانون سازی کو یقینی بنایا۔
वफाकी वजीर मंसूबा बंदी और तरक्की असद उमर ने कहा है कि अपोजिशन के लिए बुरी खबर है कि कप्तान क्रीज पर सेट हो गया है और लंबी इनिंग्स खेलने के लिए मुकम्मल तैयार है। असद उमर ने वाजे कर दिया, ये बात सच है, इमरान खान एनआरओ देने के लिए किसी के साथ नहीं चलते। नहीं है, इमरान खान जो है वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेडरल निजाम है और इमरान खान साहब तो हैं, वो तो सोलो प्लेयर है, वो दूसरों को साथ लेकर नहीं चल सकते। हाँ, बिल्कुल इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है और ना इंशाअल्लाह ताला कभी होंगे। इमरान खान 22 साल की जद्दोजहद के बाद, जिसकी कोई पाकिस्तान में, दोबारा मैं वही अल्फाज यूज करूंगा, जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, ग्रास रूट से स्ट्रगल करके वजीर आजम बने हैं। उन्होंने सबसे बड़ा, जैसे डॉक्टर हफीज शेख साहब ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सटर्नल क्राइसिस का सामना किया जिस वक्त आए, उसके बाद भारत का चैलेंज कबूल किया जो बालाकोट के बाद सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद एक डिग्निटी, करेज और ग्रेस की कॉम्बिनेशन के साथ उस क्राइसिस को फेस किया, कोविड को क्राइसिस को फेस किया। तो मेरी जो तमाम ऑपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर यह है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं अब, और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे इंशाअल्लाह। वफाकी वजीर बराए इत्तलात शिबली फराज कहते हैं जमहूरियत में हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह होती है, दूसरी तरफ वो सियासत है जहां जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। जाती मफादात की सियासत अवाम ने मुस्तरद कर दी। हमारा मकसद हुकूमती कामयाबियों की तशहीर नहीं। जमहूरियत का एक बुनियादी फर्ज होता है कि आपकी हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह होती है। इससे पहले कि मैं अपनी वजारत के बारे में बताऊं, मैं ये जरूरी समझता हूं कि ये एक मौका है जिसमें कि हमने अपने आप को अपने माजी के साथ जोड़ना है कि ये मुल्क, इसका कयाम क्यों कर वजूद में आया। आज एक वो बयानिया है जिसमें कि हम ये समझते हैं कि जो सियासत का मकसद है वो फलाही रियासत कायम करना है। दूसरी तरफ वो सियासत है जिसमें कि जाती मफादात का हुसूल है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि हमें डिफॉल्ट का खतरा था, हमने कर्ज लेकर खुद को बहुत कमजोर कर लिया था। हुकूमत ने बड़े फैसले किए, IMF से ताल्लुक बनाया, दोस्त ममालिक ने आगे बढ़कर हमारी मदद की, माजी में लिए गए कर्ज के 5,000 अरब रुपए वापस किए, 20 अरब डॉलर खसारे को कम करके 3 अरब तक ले आए। कि जो न्यूट्रल लोग हैं, जो फेयर माइंडेड लोग हैं, वो इन चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उसमें आपने देखा कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज है, फिच है, उन्होंने इस चीज को सराहा है। आपने देखा कि IMF के बोर्ड ने इसको सराहा है। आपने देखा कि दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 188% इजाफा किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में। और आपने देखा कि स्टॉक मार्केट ने 47% इजाफा किया है और ब्लूमबर्ग जो कि एक दुनिया का बड़ा इदारा है, उसने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में शामिल किया है। तो ये चीजें जो हैं इनका अब असर आने लगा है। जो हमने बजट दिया उसमें हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जो हमने बजट दिया उसमें हमने हजारों जो खाम माल की चीजें हैं उन पे इंपोर्ट के टैक्सेस सिफर किए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा भारत का पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करने का मंसूबा नाकाम बनाया, पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला भरपूर तरीके से उजागर किया। दोस्त ममालिक से मुस्तहकम ताल्लुकात की पॉलिसी बनाई गई। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी इक़दाम बड़ी कामयाबी है। हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को
डिप्लोमैटिक आइसोलेशन की तरफ धकेला जाए, तन्हाई की तरफ, सफारती तन्हाई की तरफ। और हमारी कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान की इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 5 सालों में साबका हुकूमत का बेशतर अरसा ऐसा था कि आपके मुल्क का वजीर खारजा ही ना था। तो बहुत से आपके जो नुक्ता नजर है फोरम्स पर वो पेश नहीं किया जाता था। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे दोस्त हैं, उन रिश्तों को हम दोबारा रिवाइटलाइज करें और नई अंडरस्टैंडिंग जो है हम फोर्ज अलायंस जो कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग्स को फोर्ज करें। उसमें आपने देखा जहां तक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की उनकी कोशिश थी हिंदुस्तान की, उन्हें नाकामी हुई, पाकिस्तान को कामयाबी हुई। और आज अगर आप साउथ एशिया में देखें कि पाकिस्तान नहीं, जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं उस पर उन्हें मोतरिज हैं। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। 2 साल कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कहते हैं बेरोजगारी की शरह बदतरीन हद तक बढ़ चुकी, कश्मीर से सऊदी अरब तक हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम साबित हुई। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि PTI के 2 साल तबाही के साल साबित हुए। गवर्नेंस, खारजा पॉलिसी और मईशत तबाह हुई। अपोजिशन लीडर ने अपनी ट्वीट में कहा कि इमरान खान की बद इंतजामी ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। सियासी इंजीनियरिंग के नाकाम तजर्बात की भारी कीमत आवाम को चुकाना पड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहते हैं इमरान खान ने 2 साल में मईशत को तारीखी बदहाली का शिकार कर दिया। बेरोजगारी की शरह बदतरीन हद तक बढ़ चुकी है। इमरान खान के 2 सालों के दौरान जमहूरियत और इंसानी हकूक निशाना रहे। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कश्मीर से सऊदी अरब तक हमारी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। जमहूरियत और इंसानी हकूक के लिए 2 साल नाकामी के साल रहे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की शरह बदतरीन हद तक बढ़ चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक मुल्क में करप्शन पहले से भी बढ़ चुकी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह ने कहा आज के दिन को यौम तबाही कहें तो गलत न होगा। विफाकी वज़रा ने आज तबाहकारियों से मुताल्लिक आगाह किया। मौला बख्श टांडियो बोले कि खुशहाल पंजाब अब कंगाल कैसे हो गया, ये सकरात नहीं अफलातून है। पहले तो खान साहब गिनाते थे कि एक बच्चा जो है पाकिस्तान का वो कितना कर्जई है। अभी मैं वजीरों को चैलेंज करती हूँ कि अब बता दें जिस वक्त खान साहब आए तो हर बच्चा कितना मकरूज था, और अब जब खान साहब को 2 साल हो गए हैं तो हर बच्चा जो है वो कितना मकरूज है। PTMIF हमारे चेयरमैन कहते हैं कि इस वक्त PTMIF की हुकूमत है, क्योंकि दोनों तरफ PTMIF है। कर्जों का पूरा के पूरा बोझ जो महंगाई की शक्ल में है वो आपके, हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर वो महंगाई का बोझ जो है या महंगाई का बम जो है वो गिरा हुआ है। हम तो जनरल बात कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल की। वो आपको बताएं कि कश्मीर में क्या हुआ है, वो आपको बताएं गिलगित की इलेक्शन होने वाली है वहां क्या हो रहा है, वो बताएं पंजाब, खुशहाल पंजाब कंगाल पंजाब कैसे बन गया है। वो कहें जो लोगों का पंजाब से ट्रकें भर के आटे की सिंध में उधर जा रही थी वो आज खुद परेशान है आटे के लिए और गंदम के लिए, वो बताएं। मेरे ख्याल में वो अच्छा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आज मुल्क में हर तरफ बेरोजगारी है, मुल्क को मुआशी तबाही पर ला खड़ा कर दिया है। नालायक टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत है। इस टोले ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पिछले 2 साल में नालायक हुकूमती टोला जो इस वक्त पाकिस्तान पे RTS को बिठा के मुसल्लत किया गया है, उसने झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम किया। आज मुल्क के अंदर माशी बदहाली, कौमी तरक्की की तबाही, बेरोजगारी, भूख और अफलास हर तरफ छाई हुई है। आज पाकिस्तान की आवाम के घर रोजगार नहीं है। पिछले 2 साल में मुल्क को जिस माशी तबाही, भूख और अफलास के धाने पे खड़ा कर दिया इस नालायक टोले ने, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वजीर शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्लैरिटी थी कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को किसी भी ऐसे बोर्ड का मेंबर नहीं बनना चाहिए जिसमें कि कोई
माली फवायद हासिल हो सकें या कोई एक ऐसा ऑनरेरियम मिले जिससे कि आपको कोई माली फायदा होता है। उसके बाद बिजली की तकसीम कार कंपनियां जिसको हम डिस्कोस कहते हैं, उसकी सवालात में आप पूछ लेना। जो डिस्कोस हैं, आपको पता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तकसीम कार कंपनीज जो कि बिजली की तकसीम करती हैं, उनके बोर्ड मेंबरान का असर नौ तश्कील दी जा रही है और उन मेंबरान की जो लिस्ट है जिसमें कि पेस्को, जिसमें कि केस्को, जिसमें कि हेस्को और लेस्को, इनके बोर्ड मेंबरान की तब्दीली हुई है, जिसकी की लिस्ट इंशाअल्लाह आपको 1-2 रोज में दे दी जाएगी। एजेंडा आइटम नंबर 3, ये बड़ा अहम, ये रिलेट करता है पेंशन्स को और पेंशन फंड्स को। अगर आपको याद हो तो पिछली 2 हफ्ते पहले इस पे मैंने बात भी की थी कि एक पेंशन फंड, हज फंड भी बनाया जा रहा है। तो आज उसकी तफसीलात दी गई। तो आपकी इत्तला के लिए भी कि जो पेंशन फंड्स हैं, यानी या दूसरे लफ्जों में जो पेंशन अदा की जाती है वो 470 अरब रुपए सालाना है, जबकि वफाकी हुकूमत की जो अपनी तनख्वाहें हैं वो तकरीबन 500 अरब के करीब हैं। मानी ये हुए कि जो पेंशन फंड्स हैं, पेंशन है, वो तकरीबन उतनी ही सतह पे जा रही हैं जितने पे एक पूरी जो फेडरल गवर्नमेंट चलती है उसकी तनख्वाहों के बराबर। ये मसला एक सीरियस मसला है, मैं ये समझता हूं, और काबीना भी, प्राइम मिनिस्टर साहब यही समझ रहे थे कि अगर सर्कुलर डेट के बाद अगर हमारा कोई सीरियस संजीदा मसला है तो वो पेंशन फंड्स का है। क्योंकि अगर तो आपने पेंशन एक ऐसी चीज है जो कि जाहिर है कि उस पर बहुत लोग डिपेंड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में इतना बड़ा अमाउंट हुकूमत का, यानी 1 खरब रुपए तो तनख्वाहें हो गई। अगर आप तनख्वाहें और पेंशन मिला लें तो 1 खरब रुपए से ज्यादा तो ये हो गई। तो इसका तरीकाकार होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये भी बताया गया कि इसी तरह सूबों में भी यही हाल है। अब मसलन यूनिवर्सिटीज हैं, तो जितनी भी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं उनके पेंशन फंड उनकी तनख्वाहों से ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जाहिर है जो जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी होगी, जिस तरह पेशावर यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी, तो इनकी जो पेंशन्स हैं वो बहुत एक हुजम सा बन गया है और जिससे कि काफी मुश्किलात पैदा हो रही हैं इनको। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये माजी में होता यही रहा है। जी देखें कि जितने मुश्किल फैसले होते थे वो पुरानी हुकूमतें करती नहीं थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अफगान अमन अमल को सबोताज करने की एक और कोशिश बेनकाब हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुनज़्ज़म करने का इंकशाफ हुआ है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान दुश्मन इजलास में इकरामुल्लाह तुराबी भी शरीक हुए। पक्तिका और कोनर में कालेदम तंजीमों के इजलास में रॉ और NDS एहलकार शरीक हुए हैं। इकरामुल्लाह तुराबी दोबारा अफगानिस्तान पहुंचकर कालेदम तंजीम के साथ मिल गया। इकरामुल्लाह तुराबी बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के मरकजी मुल्जिमान में से है। इकरामुल्लाह तुराबी पाकिस्तान में अदालती जमानत पर रिहा हुआ था। अफगान अमन अमल को सबोताज करने की एक और कोशिश बेनकाब हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुनज़्ज़म करने का इंकशाफ हुआ है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान दुश्मन इजलास में इकरामुल्लाह तुराबी शरीक हुआ। पक्तिका और कुंडर में कालेदम तंजीमों के इजलास में रॉ और NDS एहलकार शरीक हुए। इकरामुल्लाह तुराबी दोबारा अफगानिस्तान पहुंचकर कालेदम तंजीम के साथ मिल गया। इकरामुल्लाह तुराबी बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के मरकजी मुल्जिमान में से है। MQM पाकिस्तान ने हंगामी APC कराची कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि सिंध को खतरा सिंध हुकूमत की पॉलिसियों से है।
وفاق سے محاذ آرائی سندھ حکومت کی الیکشن مہم ہے. بارش کا پانی, ٹڈی دل کا حملہ یا پھر دوسرے مسائل, ہر مرتبہ فوج کی مدد لینی پڑتی ہے. آپ کو کراچی کے بھرے ہوئے نالوں میں سے پانی نکالنا ہو تو آپ کو فوج کے پمپ چاہیے ہوتے ہیں. گاڑیاں ڈوب جائیں, افراد ڈوب جائیں تو نیوی کے غوطہ خور چاہیے ہوتے ہیں. آپ کی فصلوں پہ سنڈی حملہ آور کرے تو آپ کو ایئر فورس سے طیارے چاہیے ہوتے ہیں. ہم نے شکریہ ادا کیا ہے. دیکھیے پرسوں تک جو کراچی کے لیے گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کمیٹی کراچی کا مستقل حل نہیں, یہ کمیٹی وقتی حل ہے, 2 مہینے 3 مہینے. ہم تو 4 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لنگڑا لولا بلدیاتی نظام, یہ نظام جان بوجھ کر اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور کراچی کو تباہ کرنے کے لیے نافذ کیا گیا. یہاں پر لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری قتل کیس میں اہم پیش رفت. نیدرلینڈز میں اقوام متحدہ کے ٹریبیونل سے اہم ترین فیصلہ سنا دیا گیا. قتل میں حزب اللہ قیادت اور شام کے ملوث ہونے کے ثبوت نہیں ملے ہیں. عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح کیا ہے رفیق حریری کے قتل میں حزب اللہ اور شام ملوث نہیں ہیں. سماعت سے قبل جج کی اپیل پر متاثرین کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی. فیصلہ سنانے کے موقع پر سابق وزیر اعظم سعد حریری بھی عدالت میں موجود تھے. حریری 14 فروری 2005 کو بیروت میں ہوئے بم دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے. ٹرک بم دھماکے میں رفیق حریری کے علاوہ 21 افراد بھی ہلاک ہوئے تھے. کیس میں 5 افراد کو ملزم نامزد کیا گیا تھا جن کا تعلق حزب اللہ سے تھا. نیدرلینڈز میں ٹرائل 2014 میں شروع کیا گیا اور 297 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات ہوئی جس میں خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. عسکری قیادت سعودی عرب میں آرمی چیف کی اہم ملاقاتیں. دفاعی امور پر تبادلہ خیال. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں جہاں ان کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں جاری ہیں. ISPR کے مطابق آرمی چیف کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات ہوئی جس میں دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی. اس سے قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر ریاض کا دورہ کیا. آرمی چیف نے سعودی چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد اور کمانڈر جوائنٹ فورس لیفٹیننٹ جنرل اسٹاف سے ملاقاتیں کی. ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی تربیت اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے راولپنڈی میں ڈبل ڈیکر بس سروس کا افتتاح کر دیا. سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ ہر 4 ماہ بعد میرے جانے کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ڈبل ڈیکر بس سروس کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سازشیں کرنے والے لوگ ملک اور صوبے کی ترقی نہیں چاہتے. سازشی عناصر ملک کی ترقی کے خلاف ہیں. ڈبل ڈیکر بس سے سیاحت کو فروغ ملے گا. جو سازشیں کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ ملک اور یہ صوبہ ترقی نہ کرے. ہر 4 مہینے کے بعد ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جس منزل سے جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں اس کو روکا جائے, اس کو ان کی جو توجہ ہے لوگوں کی ان کو ڈائیورٹ کر دی جائے. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ہر 4 ماہ بعد میرے جانے کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ لائسنس کے اجرا کے حوالے سے کیس عدلیہ میں ہے. اس پر مزید بات نہیں کروں گا. یہ علامہ اقبال پارک سے یہاں سے سٹارٹ لے گی راولپنڈی سے اور یہ سیاسی مقامات پہ ہوتی ہوئی فیصل مسجد میں جائے گی, پھر یہ زو میں جائے گی اور اسی طرح سٹاپ اوور جو ہوں گے وہاں سے یہ سٹاپ اوور کرتی ہوئی واپس یہیں آئے گی. سیاحوں کے لیے خوشخبری ہے کہ سیاح راولپنڈی اسلام آباد کے تاریخی اور سیاحتی مقامات کا نظارہ کر سکیں گے. کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں. ڈاکٹرز کا کہنا ہے شہریوں کو احتیاط کا دامن تھامے رکھنا ہوگا. MS سروسز اسپتال کا کہنا ہے کہ عید کے بعد محرم الحرام میں بھی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا تو مسائل کم ہو سکیں گے. اقلال حیدر سے جانیں گے. اقلال حیدر بتائیے گا. جی, محکمہ صحت اور ڈاکٹروں کی کاوشوں کے بعد جو کرونا وائرس سے متاثرہ مریض ہیں ان کی تعداد میں خاصی کمی ہو چکی ہے لیکن اب بھی جو خطرہ ہے وہ ٹلا نہیں ہے, برقرار ہے. سروسز اسپتال کے جو MS ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم مزید صورتحال کا جانتے ہیں. جی سر بتائیے گا کہ اس وقت جو کرونا کی صورتحال چل رہی تھی گزشتہ روز جو دن گزرے
बड़े डिफिकल्ट थे तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पे। अब आने वाले अयाम में जो अभी ईद उल अज़हा गुजरी उस पर भी काफ़ी खदशात थे, लेकिन यानी कि साथ खैर आफियत से ये दिन गुजर गए हैं। लेकिन अब मुहर्रम भी आ रहा है, क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे शहरियों को? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवर्नमेंट की लॉकडाउन पॉलिसी भी डेफिनेटली काम आई। और हमें शक था कि जैसे ईद उल अज़हा में लोगों ने बालाए ताक रख दिए, प्राइम मिनिस्टर साहब इस मामले में, हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारी मैडम मिनिस्टर सारे उसमें बहुत ज़्यादा ऑन बोर्ड थे कि लोगों को ख्याल रखना चाहिए। लोगों ने काफ़ी कुछ रखा भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ को बालाए ताक रख दिया। और फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह का जैसे पिछली छोटी ईद के ऊपर मौके पर हुआ है वैसा बस्ट ओपन नहीं हुआ और कंट्रोल रहा है। और लेकिन मुहर्रम में भी अब बहुत ज़्यादा, कि उसमें लोग बहुत ज़्यादा क्लोज बैठते हैं, जुलूस और मदारिस होती हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि लोगों को खुद ख्याल करना चाहिए। हुकूमत अपना जिम्मेदारी पूरी कर रही है, लेकिन उसका वही तरीका है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क, ये दो चीज़ें जो कर लें तो इंशाल्लाह कोरोना से अल्लाह ताला हमें निजात पूरी तरह दे देगा। लेकिन अभी तक कोरोना का खतरा पूरी तरह टला नहीं है, थोड़े थोड़े पेशेंट्स आते हैं, कोई ना कोई आ जाता है। लेकिन बहुत शुक्रिया इकबाल हैदर। बात करें खेल और खिलाड़ी की। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक ने आईसीसी के ट्रांसक्रिप्ट पर पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट को अपना जवाब जमा करवा दिया। साबिक कप्तान ने कहा बोर्ड के पास कुछ नहीं, राशिद लतीफ अताउर रहमान के सवालों के जवाब दें। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद वकार हुसैन। आईसीसी ट्रांसक्रिप्ट पर पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट को जवाब जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलीम मलिक ने कहा कि उन पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं, अदालत ने उन पर पाबंदी नहीं, सिर्फ जुर्माना किया। पीसीबी ने क्रिकेटर्स का केस हल करने की बजाय खराब किया। इनके पास ना स्क्रिप्ट है ना कुछ है, ये इन्होंने आप यहाँ से ज्यादा लगा रही है, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, तो इनके दिलों में कितना बुग़्ज़ है मेरे लिए कि ये खुद ही इन्होंने, मुझे लगता है, एक कहानी बनाई हुई है। सलीम मलिक का कहना था कि उनका नहीं ख्याल कि आईसीसी ने पीसीबी से कुछ मांगा है, अगर उनसे कुछ दस्तावेजात मांगनी होती तो लेटर अरसाल करते। साबिक क्रिकेटर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील की कि वो क्रिकेट पर भी कुछ ध्यान दें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जिस वजह से वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, क्रिकेट का ही वो स्लोगन इस्तेमाल किया था उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हुए, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये क्रिकेट तो बिल्कुल हमारी नीचे चली गई है। सलीम मलिक ने कहा कि साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने अपनी कप्तानी के चक्कर में पूरी टीम को खराब किया। राशिद लतीफ हिम्मत करें और साबिक फास्ट बॉलर अताउर रहमान के सवालों के जवाब दें। असल करप्ट जो है पाकिस्तान टीम को खराब करने वाला ये बंदा था, लोगों को सोचना चाहिए। अपनी कप्तानी के लिए इसने कुर्बानी का बकरा सब पाकिस्तान टीम को बनाया था, बोटी की खातिर सबको हलाल किया था। तारू महाना सवाल करता है रोज के, मेरे सामने आके मेरे सवालों का जवाब दो, बताओ, केसें दिखाओ। सलीम मलिक ने कहा कि उमर अकमर केस में पीसीबी का खेलों की आलमी सालिसी अदालत में जाने का फैसला गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का ज़िया है। कैमरामैन मोहम्मद मुबशिर के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।